Now, we are going to the third part of the chemical properties of carboxylic acid. The reaction in which the carboxylic acid and in some reaction alpha carbon is involved. Okay, so the first reaction is here. Wait, that is decarboxylation reaction. This reaction is similar to the decarboxylation of sodium carboxylate, in which the loss of carbon dioxide take place. Okay, so here this is the reaction. See, carboxylic acid in which carboxylic group is converting into CH2OH, means carboxylic acid is converting into alcohol, means you can say it is a reduction reaction. Okay, so here lithium aluminum hydride is a reducing agent, or B2H6, which provides nascent hydrogen. Nascent hydrogen means free hydrogen. Okay, these nascent hydrogens are responsible for the reduction of carboxylic acid. Means 2 hydrogen here, it will become CH2. 1 hydrogen here, it will become OH, and 2 hydrogen, 1 hydrogen will remove this OH group. So removal of H2O. So this is called a reduction reaction. You can see the example here. CH3COOH. Lithium aluminum hydride is a strong reducing agent, a powerful reducing agent, which directly converts this carboxylic group into alcohol, means primary alcohol, CH3CH2OH. And you can also convert the aromatic carboxylic acid into alcohol, like benzoic acid into benzyl alcohol by B2H6 or lithium aluminum hydride. This is benzyl alcohol. COOH group is converting into CH2OH group. Okay, so another reaction in which decarboxylation takes place, or we can say here that is COONA group converting into alkane. ये रिएक्शन हमने पढ़ा है 11th के अंदर. 11th में अल्केन टॉपिक में प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में हमने देखा था. रिएक्शन वेरी सिंपल. दिस NaO from sodium hydroxide and this NaCOO gives Na2CO3 and this hydrogen here. Now it is RH, means alkane. Okay, for example हम लेते हैं यहाँ पर CH3COONA, sodium acetate, okay, with NaOH and calcium oxide. Again 1 hydrogen here and it will become CH4, methane. So this is a decarboxylation reaction, means removal of carbonate. So removal of carbon dioxide, also called decarboxylation, and removal of carbonate CO3, also called decarboxylation. Okay, let's see one more example. CH3CH2COONA. This is from propionic acid and this is sodium, so it is called sodium propionate. Sodium propionate.
propionate. Okay, now decarboxylation by using NaOH and calcium oxide, which is called soda lime. Now this COONA and NaO will give Na2CO3, removal of carbonate. Okay, removal of carbonate, hydrogen here, and it will give CH3 means ethane. मतलब आप जितने कार्बन वाला यहाँ पर सॉल्ट लेंगे उससे एक कार्बन लेस वाला आपको अल्केन मिलेगा, क्योंकि एक कार्बन जा रहा है इन कार्बोनेट फॉर्म, वो कार्बोनेट के फॉर्म में चला गया है. ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन इज हैलोजिनेशन. दिस वन हैलोजिनेशन, ये साइंटिस्ट के नेम पर है रिएक्शन, हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, in short called HVZ reaction. Okay, it is a substitution reaction in which alpha hydrogen means carboxylic acid के बाजू वाला जो कार्बन है वो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, और उसको लगा है अल्फा हाइड्रोजन. So alpha hydrogen is replaced by the halogen means X2 Br2 example. यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा और एक X आ गया. देखिए आप यहाँ पर ये X में भी क्लोरोब्रोमो. ओके, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड इट्स नेम. ओके, इसका एग्जाम्पल हम यहां पर देखते हैं. सीयर CH3 CH2 COOH Br2 विथ रेड फॉस्फोरस. यहां से अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, CH3 CH Br COOH, अल्फा ब्रोमो, 3 कार्बन इसलिए प्रोपियोनिक एसिड, अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड. ये जो एक हाइड्रोजन है यहाँ पर ये भी रिप्लेस हो सकता है. मतलब यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो डबल ब्रोमिनेशन होगा, और अगर 3 हाइड्रोजन रहे तो ट्रिपल ब्रोमिनेशन भी यहाँ पर हो सकता है. ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट वन इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. ये हमको पता है कि हमने ये रिएक्शन देखा है, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन. सो लाइकवाइज दिस रिएक्शन, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है ब्रोमिनेशन. तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि हमने फिनॉल में पढ़ा था कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है. मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो कहाँ पर आता है, या तो ऑर्थो पर आता है या फिर पैरा पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में. बट कार्बोक्सिलिक एसिड में जो बेंजोइक एसिड है इट इज़ अ मेटा डायरेक्टिंग. इसके लिए हम सेपरेट एक लेक्चर लेंगे कि उसमें कैसे पहचानना है मेटा और कौन मेटा डायरेक्टर है, कौन अल्फा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है. ओके, सो दिस इज द मेटा पोजीशन. तो ये मेटा डायरेक्टर है. इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो नेक्स्ट इमीडिएट डालने वाला हूँ जिसमें बताएंगे कि हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर को यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है. तो अभी आप यहाँ सिर्फ शॉर्ट में याद रख लीजिए. बेंजाल्डिहाइड जो आपके सिलेबस में है, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको. बेंजाल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, एसिटोफिनोन, ये सब मेटा डायरेक्टर है. मतलब मेटा पोजीशन पर ये रिएक्शन देने वाले हैं. तो यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड आपको दिख रहा है HNO3, ये नाइट्रिक एसिड बनता है HONO2. ओके, ये प्लस NO2 है और OH यहाँ पर माइनस है. सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल. तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाता है, मेटा पोजीशन पे, और यहाँ से जो H है वो निकल जाएगा विद दिस OH H2O, और NO2 आ गया मेटा पोजीशन पे. सो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड. सिमिलर ब्रोमीन भी यहाँ पर जो है 2 ब्रोमीन है
ब्रोमीन Br2 2 ब्रोमो एटम्स, जिसको ये लेविस एसिड जो होता है एक को माइनस बनाता है और एक को प्लस बनाता है बाय दी अट्रैक्शन। तो ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है मेटा पोजीशन पे, तो आपको मिलेगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ओके, इसके यूजेस को आप रीड कीजिए थोड़ा और इसके जो एप्लीकेशंस है वो सॉल्व कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये ऑर्थो और मेटा पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।